اللہ سے ان جلسوں سے امت کا نفع عطا فرما ہے. آمین اللہم آمین. ہماری غرض اتنی ہے جو جن کے متعلق میں کہہ رہا ہوں، بعض چاہنے والے ہمارے ایسے ہیں کہ انہوں نے یہ امیج بنا رکھی ہے ہمارے متعلق کہ جہاں جائیں گے وہاں دنگا ہو سکتا ہے، جھگڑا ہو سکتا ہے. میرے عزیزوں، مصطفیٰ کریم صلی ایک بڑی کمپنی کا کوئی مینیجر ہو جائے تو اپنا لباس ٹھیک ٹھاک کر لیتا ہے. کسی کمپنی کا سی اے بن جائے یا مین رسپانسبل آدمی بن جائے تو اپنے رہن سہن کے انداز بدل لیتا ہے، کیونکہ پوری کمپنی کے سارے معاملات کا دار و مدار اس مینیجر پر ہوتا ہے یا سی او پر ہوتا ہے. دنیا اس شخص کو دیکھ کر اس کی کمپنی کو پہچانتی ہے. جی جی جی. ساری ڈیلنگ وہ مینیجر کرتا ہے یا سی او کرتا ہے، بہت ہو. واہ 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 واہ. لیکن اس کے کندھوں پر اتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ میں بہت بڑی کمپنی کا بوجھ اٹھایا ہوا ہوں کہ کوئی بھی آیا ہوا آدمی میری کمپنی سے مایوس ہو کر نہ چلا جائے. وہ اپنے بیہیویئر صحیح کرتا ہے، اخلاق صحیح کرتا ہے، بات کرنے کی تمیز بدل لیتا ہے. کیوں؟ اس کا اپنا کاروبار ہے یا ایک بزنس چین بنانا ہے. میرے عزیزو، بلا تشبیہ و بلا تمثیل، میں یہ صرف تمہارے ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. دنیا کی ایک معمولی کمپنی کا کوئی مینیجر اپنے بیہیویئر صحیح کر لیتا ہے صرف اس لیے کہ دنیا میری کمپنی کی طرف متوجہ ہو جائے. تو اندازہ کرو تم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ترجمان، سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ترجمان ہو. تمہارا اپنا بیہیویئر اور تمہارے اخلاق کس قدر اعلیٰ ہونے چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے کیریکٹر دیکھ کر کے کوئی تمہارے نبی سے دور نہ ہو جائے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بدظنی کا سبب تم نہ بن سکو. اس بات کی ذمہ داری ہر امتی کے کندھے پر ہے، ہر نوجوان کے کندھے پر ہے. اور میں آج گفتگو یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ماڈرن سٹیز میں دیکھ رہے ہیں، بڑی بڑی جو پاش سٹیز ہیں، میٹروپولیٹن سٹیز، خاص طور پر ممبئی، دلی، کلکتہ یا پھر چنئی، پونا، اس طرح کی جو بڑی سٹیز ہیں، اکثر میرے جانے والوں نے ایک اور دیکھا میں نے کہ وہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے کورسز سیکھنے کے لیے بڑے مشتاق ہیں. بہت سارے نوجوان لڑکی بیٹھنے کا طریقہ بتائے کا نہیں معلوم، جسے کھانے پینے کے سلیقے نہیں معلوم، نہ حلال میں تمیز نہ حرام میں تمیز، جن کی عقلیں شراب میں معروف، وہ تمہیں اخلاق و کردار سکھائے. اخلاق و کردار اگر کہیں سکھائے جاتے ہیں تو گنبد خضرا کی چھاؤں میں سکھائے. ایک بات میں بتاؤں، ایک بہت بڑے ماڈرن آدمی ہے، ڈاکٹر ہے، پروفیسر بھی ہے پیشے سے، اور وہ امریکی تعلیمات سے بڑے متاثر. جب وہ قصیدے گنگنا رہے تھے ہمارے عالم ربانی کے پاس، کہہ رہے تھے کہ مولانا آپ سے بخاری اور مسلم میں رہ گئے، یہ صدیاں گزر گئی، ابھی قال رسول اللہ ہی میں ہے آپ. امریکہ نے اتنی ترقی کر دی کہ ہم آسمان پر پہنچ گئے، چاند میں پہنچ گئے. ہم نے زمین کے سیال مادے کو نکال کر طرح طرح کے کیمیکل بنائے، سورج کی شعاؤں کو قید کر کے ہم نے بجلی بنا دیا، ایک چھوٹے سے آلے کو بات کرنے والا موبائل بنا دیا. انٹرنیٹ کی دنیا میں ایسی مادے کو نکال کر طرح طرح کے کیمیکل بنائے، سورج کی شعاؤں کو قید کر کے ہم نے بجلی بنا دیا، ایک چھوٹے سے آلے کو بات کرنے والا موبائل بنا دیا. انٹرنیٹ کی دنیا میں ایسی تعلیمات، یہ بہت پرانی تعلیمات تھی. میں آپ کو بتاتا ہوں، اس مغرب زدہ مفکر سے ہمارے ایک عالم ربانی نے کہا کہ میں مانتا ہوں کہ آپ نے بڑی آپ چاند تک پہنچ گئے، آپ آسمان پر اڑنے لگ گئے، بیٹھے ہوئے جگہ پر آنے لگتی. توجہ چاہتا ہوں، ایک مغرب زدہ مفکر نے جب یہ چھیڑ خانی کی کہ ملا کیا ہے اسلام سے، بخاری اور مسلم نے کون سی ترقیاں کی،
हमारी तालीमात में साइंस और टेक्नोलॉजी में देखो कहाँ तक हम कहाँ तक पहुँच गए। वैसे लाफा मोबाइल से लेकर कंप्यूटर, कंप्यूटर से लेकर एरोप्लेन, वहां से लेकर जेट, मिसाइल, पेट्रोल, ये सारी चीजें तरक्कियां ही तो। उस आलिम रब्बानी ने क्या खूब जवाब दिया, कहा कि बहुत अच्छी बात है। और एक जगह मुफक्किर ने कहा है ऐसा भी कोई होता है, ऐसा भी कोई इंसान होता है। उस आलिम रब्बानी ने कहा फर्क इतना ही है, आप जिस तरक्की की बात कर रहे हैं वो सिर्फ मेटल की। मोइनुद्दीन हसन गरीब नवाज चिश्ती रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पीर मुर्शिद का हाल है कि जब मदीने तैयबा में वो मौजूद थे, गरीब नवाज उनके पास गए थे बैत के लिए, तभी तो ये वाकया पेश आया था। ख्वाजा उस्मान हारूनी ने कहा था मोइनुद्दीन आप ऊपर देखो क्या दिखता है, कहा आसमान दिखता है, नीचे देखो क्या दिखता है, कहा जमीन दिखती है। अब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दोनों आंखों पर ख्वाजा उस्मान हारूनी ने अपनी दोनों उंगलियां रखी। अब फिर कहा अब मोइनुद्दीन दोनों उंगलियों के कमान के दरमियान से अब आसमान को देखो, अब क्या दिखता है। गरीब नवाज ने अब उन कमानों के बीच से देखा तो पुकार कर कहने लगे मेरी नजरों में पहला आसमान भी है, दूसरा और तीसरा भी है, चौथा और पांचवा भी है, छठा और सातवां भी है। ऐ पीर मुर्शिद मुझे अर्शे खुदा तक नजर आ रहा। सबसे आला अखलाक देने के लिए क्या तुम्हें पता नहीं है मक्का पर मौला ने मेरे रसूल को मबूस किया, जो अखलाक से गिरा हुआ माहौल वहाँ पर मौजूद था। बासाख्ता तौर पर तारीख में आज भी मौजूद है कि मेरे मियाँ किसी को छेड़ लेना, मेरे मियाँ के पास लेना, चलो ये मानते हैं हम अखलाक से गिरी हुई बातें हैं, लेकिन इसको थोड़ा गिरा हुआ कहा जा सकता है। चोरी हर कौम में होती है, लेकिन मक्का की वो सरजमीन जहां अपने ही कोख से पैदा हुई बच्ची का गला घोट कर अगर कोई जमीन में दफन करता है तो फिर ये अखलाक से सबसे गिरी हुई हरकत, इंसानियत से भी गिरी हुई हरकतें थी। उस सरजमीन पर मौला ने मेरे रसूल को भेजा जहां खुद मर्द अपनी औरतों को, अपनी माँ और बहनों को पैसों की कमी की वजह से बाजार में नीलाम कर देते, उनको बेच आया करते थे। औरतों की इज्जत उनके नजदीक कोई बड़े माना नहीं रखती थी। यहाँ तक कि मेरे अजीजों क़िमार, जुआ, शराब, कत्ल गारत गिरी, ये क्या चीज नहीं थी, सब अखलाक से गिरी हुई चीजें थी। लेकिन रब ज़ुल जलाल ने उसी सरजमीन पर मेरे रसूल को मबूस फरमाया जहां अखलाक की सबसे गिरी हुई हरकतें हो रही थी। लेकिन क्या हुआ इनकलाब, वो कैसा इनकलाब था जिसको शायर ने क्या खूब अंदाज में कहा। एक नजर में एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पर औरों के हाथी बन गए। अरे क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जामिया साबरिया, साबिरे पाक कॉन्फ्रेंस। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी पाक के चंद वो नमूने तुम्हारे पास में रखता हूं। बैठो ये मोबाइल पे बता, मोबाइल बच्चे चले मत कर, दिखाई इधर, बंद कर अबे बंद कर। आप लोगों के लिए बड़े नरम हैं, वाह वाह वाह, आप लोगों के लिए नरम है, और अगर आप सख्त होते तो ये लोग आपसे दूर हो जाते। वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन तकून मिन क़ौलिक। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नरमी और शफ़क़त, मेहरबानियां, ये अखलाक के उन आला किरदार, उन आला मेयार में से है। मैं तुम्हें क्या बताऊं, बात करने के भी कुछ सलीके होते हैं ना, किससे बात करना चाहिए, किससे नहीं करना चाहिए। हर आदमी आज स्टेटस देखता है, मैं किससे बात करूं। पैसे वाला आदमी गरीबों से बात करने में झिझक महसूस करता है कि मेरी इज्जत में कमी ना हो जाए, मैं अपने स्टेटस के लोगों से मुलाकात करूं, बातचीत करूं। ये दुनिया का निजाम है, इसी को दुनिया अखलाक समझती है। तरह से कान खाना है, खा लेना है, लोग उससे बचते थे। वो खातून आने लगी, सहाबा ने देखा, अरे ये तो फला खातून आ रही है, पागल औरत,
हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अतराफ सहाबा ने घेरा कर लिया उस औरत से हुजूर को बचाने के लिए। वो करीब आती गई और हुजूर की तरफ आ रही थी। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे सहाबा, छोड़ दो उसको रास्ता आने को। पागल औरत है, पागल औरत है और जुबान पर उसके कंट्रोल नहीं, जो बोलना है बोल जाती है, सामने वाले को देखती नहीं। सहाबा ये सोच रहे थे कि कहीं ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईजा ना पहुंचाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा, छोड़ दो उसका रास्ता। सहाबा ने कहा, आका, वो औरत बदजुबानी कर जाती है, उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, वो पागल है। सहाबा ने फिर रास्ता रोक लिया। जानते हैं जलाल में मेरे आका ने फरमाया, मैं जानता हूँ उस खातून को, मैं जानता हूँ उस औरत को, उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं, पागल है, लेकिन ऐ मेरे सहाबा, छोड़ो रास्ता। मैं ये भी जानता हूँ कि पूरे मदीने में उसकी कोई बात नहीं सुनता। तुम मुझे बताओ, अगर मैं भी न सुनूं तो किसके पास जाए? ये अखलाक और किरदार का वो मेयार है जिसे दुनिया मिसाल नहीं ला सकेगी। बादशाहों के दरबार में जाने के आदाब हुआ करते हैं, वहां पहुंचने के लिए लिबास देखे जाते हैं, सोर्स देखे जाते हैं, तब जाकर के रसाई होती है। रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में ये ऊंच नीच का फर्क नहीं था, ये अमीर और गरीब के दरमियान तफावत नहीं था। अखलाक और किरदार की बात करते हैं आप। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो मुआशरे के अंदर अखलाक पेश किए हैं, वो आइडियल सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ पूरी कायनात के लिए वो आइडियल है। बेशक बेशक, पूरी कायनात के लिए वो आइडियल है। और ये बात सिर्फ मेरी नहीं है, एक बहुत बड़े अंग्रेज राइटर ने एक किताब लिखी है जिसमें सबसे ज्यादा मुअस्सिर शख्सियत जो दुनिया में है, जिन्होंने इन्फ्लुएंस कायम किया है लोगों के दिलों पर, 100 शख्सियत का जिक्र किया, उसमें सबसे पहले नंबर पर मेरे आका का जिक्र सुना। वो मुसलमान शख्स नहीं है, मुसलमान नहीं, वो ईसाई है। लिखने वाला ईसाई, लेकिन पहले नंबर पर मेरे नबी का नाम। उसमें वजह भी उसने क्या बेहतरीन लिखी। कहा, मैंने एक हदीस पढ़ी जिससे मैं बहुत मुतासिर हुआ। मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुताबिक मैंने ये सुना कि वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे। जब भी तिजारत पर जाके वापस आने के वक्त बच्चों को सामान ले आते, मदीने के सारे बच्चे हुजूर के जुब्बे से लटक जाते थे, कोई इधर से कोई उधर से, और कभी कभार हुजूर उनको खिलाया करते थे और खुद बैठ कर देख रहे होते थे। एक वक्त ऐसा था कि बच्चे खेल रहे थे, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुशाहिदा कर रहे थे। देखने से एक रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न कभी नाइंसाफी होने दिया, न कभी अखलाक से गिरी हुई हरकत मदीने में होने दिया। झूठ से किसने बचाया अपनी कौम को, शराब से किसने बचाया अपनी कौम को, चोरी से किसने बचाया अपनी कौम को। 1000 डिपार्टमेंट हो जाने के बाद चोरी पर रोक नहीं लग पाती, लेकिन उस रहमत आलम की एक जुबान से निकलने वाले एक जुमले ने पुराने शराबियों को हमेशा के लिए परहेजगार बनाया। ये इन्फ्लुएंस कहां से आया? ये अखलाक और किरदार का एक अजीम इनकलाब। तुम्हें पता है, मैं समझ नहीं पाता, एक क्लास का टीचर है और वो बच्चों को सिखा रहा है। बच्चों को क्या सिखाया जाएगा? उनके लिए स्किल्स और उनके लिए अच्छे मैनर क्या होते, अखलाक और किरदार क्या होते, वो सिखा रहा है। लेकिन मुझे हैरत की बात ये हुई कि वो शराब पीकर सिखा रहा है, और उसके लिए कोई ऐब की बात नहीं। शराब एक नॉन कॉमन चीज हो गई आज। उन्होंने कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं, हम होश में रहते हैं, शराब पीकर भी होश में रहते हैं। अजीजा ने गिरामी औकात, ये उस दुनिया की मैं बात कर रहा हूं जो जगह जगह डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव लिख करके भी लगाती है और फिर शराब के लाइसेंस भी खुद ही तकसीम करती है। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बनाया हुआ मुआशरा वो नहीं था, बल्कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस दिन ऐलान किया कि ये शराब हराम है, नौजवानों तुम्हारे अखलाक और किरदार को तबाह करने वाली चीज है, उम्मुल खबाइस है, तमाम बुराइयों की जड़ है। तुम नशे में क्या कर सकते हो तुम्हें अंदाजा भी नहीं।
तुम नशे के आदि अगर हो गए तो कब के काफिर हो जाओगे, तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा। माँ को बीवी कह देगा, बीवी को माँ कह देगा। नशा वाला आदमी, उसे ना अपनी बेटी समझ में आती है ना अपनी बीवी समझ में आती है। जब अकल मारूफ हो जाए, अकल पर पर्दा पड़ जाए तो सारे रिश्ते उसके सामने से खत्म। भला ऐसी चीज इस्लाम कैसे दे सकता है। मुझे वो बात याद आती है, हमारे मिस्र के सफर के दरमियान मैंने बात सुनी थी। प्लेन के सफर में आमतौर पर आज इंटरनेशनल जो फ्लाइट्स होती, इसमें बाज़ाब्ता तौर पर शराब भी सप्लाई की जाती है। जो खाना दिया जाता है उसमें ऑप्शन होता है, जो चाहता है वो विस्की ले लेता है। हमारे एक सफर के दरमियान हमने पूछा था, एक कैन दिया गया था। बगल वाले ने पूछा ये क्या है, कहा कि क्रेजी वाटर है। क्रेजी वाटर उसका नाम है। मैं तो पहली मर्तबा सुना था कि पागल पानी भी होता है, लेकिन असल वो शराब वाइन है, उसको खूब रिफाइन किया गया फ्लाइट में। मैं जो बात अर्ज करने जा रहा हूं वो ये है कि एक मुसलमान नौजवान उसमें था, तो एयर होस्टेस दूसरों को शराब सप्लाई करते हुए उसे भी पेश करती है। ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला, उसे शराब पेश की गई तो उसने मना कर दिया कि आई एम ए मुस्लिम। जवाब में इतना कहना सामने वाले को बहुत भारी पड़ जाता है। ये कह देना कि मुझे पसंद नहीं है, हो सकता है सामने वाला छोड़ दे, लेकिन ये कहने में मैं मुसलमान हूं, सामने वाला दिल भूल जाता है, उसे तकलीफ इसी बात से होती। तो वो मजाक उड़ाने लगी, ये भी कोई बात है। रिलैक्स होने के लिए हर आदमी पीता है, सफर में आप लंबा सफर है, थोड़ा पी लोगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर भी मजहब ले आते हो, यहां पर भी धर्म ले आते हो। उसने कुछ नहीं कहा, उस नौजवान ने उस खातून से कहा ठीक है, आप मुझे शराब देने पर या ये तुम्हारा क्रेजी वाटर पिलाने पर इतनी बजीद है तो मेरी तरफ से एक मशवरा ये है कि पहले आप पायलट को पिलाएं, पायलट को पिलाएं, उसको सर्व कीजिए। उसके बाद उस खातून ने कहा पायलट पीता होगा लेकिन अभी ऑन ड्यूटी है, अभी ऑन ड्यूटी है, अभी शराब मैं नहीं दे सकती। उस नौजवान ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलमान पूरी जिंदगी ऑन ड्यूटी होता है, पूरी जिंदगी ऑन ड्यूटी होता है। तुम्हें पता है एक ड्राइवर को, पायलट को शराब इसलिए नहीं दिया जाता कि उसके पीछे बहुत सारे मुसाफिर हैं, उनकी जानें उसके ऊपर जिम्मेदारी है। इसी तरह हम पर इस्लाम ने ये जिम्मेदारी दी है, सिर्फ हमारी अकल सलामत रहेगी, हमारी नस्ल सलामत रहेगी। मेरे अजीजों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, तुमने इस्लाम के दामन में अगर मुताला किया होता तो दुनिया को ये बता सकते कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरी कायनात की ऐन फितरत के मुताबिक मेरा दीन बनाया। इंसानों की फितरत के मुताबिक ये दीन आया है, ये लोगों के चंद मशवरों से बना हुआ दीन नहीं है, किसी घर से या किसी संसद से बना हुआ दीन नहीं है, किसी एक कट्टे पर 4 लोग बैठ करके दीन पास कर दिए हुआ दीन नहीं है। जिसने पूरी कायनात को बनाया उसी ने ये दीन भी बनाया। उस खालिक कायनात को ये पूरी तरह से मालूम है कि इंसान की कमजोरियां क्या हैं और इंसान के आला अखलाक व किरदार कहाँ हो सकते हैं। गिराम औकात, इसीलिए कुरान ने कहा वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु, जो दीन इस्लाम के अलावा दूसरी जानिब मुंह मोड़ेगा आखिरत में बड़े खसारे में होगा, वो कबूल नहीं किया जाएगा। वहुव फिल आखिरति मिनल खासिरीन। अज़ीज़ान गिराम औकात, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ, लाओ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वो अजीम अखलाक और किरदार, जिन्होंने हर तबके को, हर माशरे को इज्जत अता किया, ये आज हमें इस्लाम के मुतालिक बातें सिखाने आए हैं। मुझे आज बात सिर्फ इसलिए अर्ज करनी है कि बेपढ़े लिखे लोग, जाहिल लोग इस्लाम पर उंगलियां उठाते हैं, उन्हें पता भी नहीं ये 4 वरक वाला इस्लाम नहीं है। इस्लाम उस अजीम दरख्त का नाम है जिसकी जड़ें तहत सरा में, जिसकी शाखें औजे सुरैया पर है, हजारों
कुत्तों के भौंकने पर इस्लाम का न कल बिगड़ा था न आज बिगड़े, लेकिन मैं बात ये जरूर कहना चाहूंगा, इस इस्लाम के अजीम अखलाक और किरदार जो रसूल पाक ने दिए, दुनिया उसकी मिसालें लाने से आजिज है, काफिर है। जब जवाब नहीं लाया जा सकता तो फिर भौंकने और चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं होता। बेदलील के लोग आज भी भौंकते हैं। मैं तुम्हें बताऊं, ये आज अखलाक और किरदार और मसावत और इक्वलिटी, ये बराबरी के दावे करने वाले लोग, क्या औरतों को चार दीवारी से बाहर निकालो, आजाद करो, इस्लाम ने कैद करके रखा है, इनको बुरके में हिजाब में पाबंद करके रखा है, इनकी आजादी को मार कर रखा है। ये सब प्रोपेगेंडा जो आज दज्जाली मीडिया करता है और उसी के हमनवा ताकतें पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीट रही है। इनके नजदीक औरत की इज्जत क्या है? नंगी औरत स्टेज पर नाचने लगे और दूसरे कुत्ते राल टपकाते हुए उसे देखते रहे, इनके नजदीक ये औरत की इज्जत है। औरत की इज्जत यही है कि उसको शहवानी ख्वाहिशात की मशीन बनाई जाए, जो जैसा चाहे उसे इस्तेमाल करे, ये औरत की इज्जत है। औरत को आज इज्जत देने की बात वो गीदड़ कर रहे हैं जो कभी किसी जमाने में शौहर के इंतकाल के बाद उस बेवा औरत को आग में जला दिया करते थे। ये सती की रस्म कहाँ होती? ये सती क्या है? ये एक रस्म, जब किसी औरत का शौहर इंतकाल कर जाता, इसी देश की बात कर रहा हूं, मर जाता, तो बेवा औरत को जीने का हक नहीं था, उसे भी मर्द की चिता के साथ आग लगाई जाती थी। ये अखलाक का किरदार थे। और बाद में फिर ये बात हुई कि नहीं, अब आग नहीं लगाई जाएगी, औरत को जिंदा रखा जाएगा लेकिन अपने घरों में नहीं, जंगल में छोड़ दिया जाए, या उसका खान पान सब अलग कर दिया जाए, इसलिए कि बेवा अब शगुन होती है, कहीं आ जाए तो काम धंधे पूरे चौपट हो सकते हैं। ये सारे बुरे ख्यालात जहां पर मौजूद थे और आज वो हमें औरतों की इज्जत का सलीका सिखाने आए हैं। तुम्हें पता नहीं, आओ रसूल रहमत की तालीमात में इस पूरी कायनात में सबसे पहले, मैं आपको कहता हूं हुजूर की आमद से 200 साल पहले यही रशिया, जो रशिया आज पूरी सुर्खियों में है, रशिया में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसकी तारीख भी मौजूद है, उसका लिटरेचर भी मौजूद है। कॉन्फ्रेंस किस बात पर हुई थी? बड़े बड़े मैं ये कभी पढ़ता हूं तो मुझे हंसी भी आती है। सारे दानिश्वर मिलकर इस बात पर मीटिंग कर रहे थे कि औरत को इंसान समझा जाए या नहीं समझा जाए। टॉपिक ये था, औरत को इंसान समझा जाए या फिर जानवर, ये दूसरी मखलूक समझा जाए। लेकिन और बात है कि अच्छा है कि मीटिंग में ये प्रस्ताव पास हुआ कि इंसान ही है, इंसान ही है। यूनान की हुकूमत जो उस वक्त सुपर पावर थी, यूनान रोम सुना होगा आपने, सुपर पावर ताकतें, लेकिन औरतों के साथ जो उनके मामलात थे वो भी तारीख में मौजूद है। 5 जंजीरें औरतों के पास डाली जाती है, एक गले में 2 हाथ। आका और मौला मदीने के ताजदार ये ऐलान करते हैं, जिसके घर में 2 बेटियां हो जाए और परवरिश करके वो अगर अच्छी जगह निकाह कर दे, हुजूर फरमाते मेरी शफाअत उस पर वाजिब है, मैं उसे जन्नत में ले जाता हूं। सहाबी आए, कहा या रसूल अल्लाह 2 बेटियां तो नहीं है, 1 बेटी है, क्या करूं? रसूल रहमत ने फरमाया, जा अगर 1 बेटी की भी परवरिश करके अच्छी जगह निकाह कर देगा तो मोहम्मद तेरा हाथ पकड़ कर जन्नत में ले जाए। जिस जमाने में औरतों का पैदा होना है समझा जाता था, उस जमाने में रसूल रहमत ने बेटियों को औज पर पहुंचाया है, बुलंदियों पर पहुंचाया है। तुम्हें अंदाजा भी है रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो निकाह फरमाए, आज ये भोंकते हैं हुजूर की शादियों को लेकर, हुजूर की बीवियों को लेकर। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, 10 निकाह हुजूर पाक ने फरमाए, सिवाय उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका के, बाकी जो 9 बीवियां हैं कोई एक भी उसमें कुंवारी नहीं थी, सबकी सब बेवा थी या मुतल्लका थी। खुद मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेवा औरत को निकाह करके इन्हीं सती वाले बुरे अंजारों को ये सबक दिया था कि बेवा अब शगुन नहीं होती, घर में ले आओ, उसकी वजह से अल्लाह दुआएं कबूल करता। इन बेवाओं को विडोज को कौन है जो इज्जत बख्शा है? कौन है जो इस बुलंद मकाम पर पहुंचाया है?
बीवियों के साथ बुरा सलूक करने वाली वो दुनिया आज इस्लाम को अखलाक और किरदार की तालीम दे रही है। हैरत की बात नहीं है। मैं आपको एक मिसाल बता दूं, शैतान अगर किसी दिन ये कहने लग जाए कि फजर की नमाज को उठो बड़ा सवाब है, तो कैसा लगेगा आपको? शैतान अगर आपको ये कहने लगे कि फजर की नमाज में बड़ा सवाब है, उठ करके पढ़ लीजिएगा, तो आपको हैरत नहीं होगी? इसी तरह आज कुछ लोग हमें आला अखलाक की तालीम दे रहे हैं, जिनके घरों में नंगे नाच और जिनके वहां दरिंदगी और बेहयाई उरूज पर वो दीन इस्लाम पर उंगलियां उठाए। ऐ नौजवानों, आज तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि तुम अखलाक रसूल के हकीकी तर्जुमान बन जाओ। तुम रसूल पाक की गुस्ताखियों का जवाब सिर्फ क्या नारों से देना चाहते हो? क्या तुम सिर्फ अपने बुलंदे बाला तकरीर से देना चाहते हो? बल्कि दुनिया को ये बताओ, तुम छीन छीन करके मेरे नबी की सुन्नतों को मुआशरे से खत्म कर। हमारी कौम का हर बच्चा ये अहद करके उठेगा कि जियूंगा तो मुस्तफा की जिंदगी जीऊंगा इंशाअल्लाह। मुझे इसमें ऐब और शर्म और आर की बात नहीं कि मैं अगर अपने नबी के अखलाक पर जीऊं। मेरे अजीजों, कभी किसी सिख को शर्म और ऐब नहीं आई कि वो अपने धर्म को फॉलो कर रहा है। किसी पंडित को छोटी चोटी रखने पर शर्म और ऐब नहीं महसूस हुआ इसलिए वो धर्म को फॉलो कर रहा है या धर्म का पालन कर रहा है। तुम्हें किस बात की हया और शर्म आनी चाहिए? मेरे अजीजों, तुम किसी चोर कौम से वाबस्ता नहीं हो, तुम दुनिया में खैर उम्मत बनाकर भेजे गए हो। कुरान ने तुम्हें खैर उम्मत कहा है। तुम फख्र के साथ ये कह सकते हो, दाढ़ी मेरी शान है, टोपी मेरी शान है। मेरी बच्चियां और हमारी बहनें बुलंद बाग ऐलान के साथ कह सकती है। जैसे आज सड़कों पर कुछ ज़र खरीद औरतों को बुला करके ये कहा गया था, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। पाकिस्तान की सड़कों पर कुछ औरतें बैनर लेकर के एहतजाज कर रही थी कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। जवाब में आए नौजवानों, अपनी बहनों से कहो मेरा बुरखा मेरी मर्जी, मेरा हिजाब मेरी मर्जी। इसलिए कि दुनिया को चिढ़ ये काले बुरके से नहीं है, ये काले कपड़े से नहीं है। अरे ये वो दुनिया जो कोरोना में पूरा का पूरा बुरका पूरी दुनिया को पहना सकती है, वो औरतों के बुरके से नहीं चिढ़ नहीं है। हकीकी बात ये है, अगर चिढ़ है तो तुम्हारे सीनों में मौजूद इश्क मुस्तफा से। बुरका कोई चीज नहीं है, ये लिबास कोई चीज नहीं है। मैं आपको बताता हूं, मैं अगर वो लोग बुरके और हिजाब की अहमियत को नहीं समझे तो मैं उन्हें समझा दूं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा है हमारे दीन में जो सबसे इज्जत वाली चीजें हैं हम उन्हीं को तो गिलाफ चढ़ाते हैं, उन्हीं को गिलाफ चढ़ाते। कुरान पाक अल्लाह की मुक़द्दस किताब, उसका गिलाफ होता है, कपड़े में लपेट कर रखते हैं। औलिया किराम के मज़ारात चादर से ढकाए जाते हैं। क्यों? क्या औलिया को ठंड लगती है? क्या उन्हें गर्मी लगती है? मज़ारात पर चादर क्यों चढ़ाए जाते हैं? ये कंबल और शाल की तरह नहीं है। मज़ारात पर जो चादर चढ़ाई जाती है उनकी अज़मत शान बयान करने के लिए। ये आम लोग नहीं है जैसे कब्रिस्तान में सब सोए हैं। चादर चढ़ाकर उसकी अज़मत बताई जाती है कि आम कब्र नहीं है, एक अल्लाह वाले की कब्र है। कुरान को गिलाफ है, बुजुर्गान दीन की कब्रों पर गिलाफ है। हत्ता कि कायनात में सबसे अफजल मकान खाने काबा पर भी गिलाफ है। क्यों गिलाफ है? खाने काबा को काले कपड़े से क्यों ढाका गया है? क्या उसको नजर लग जाएगी या कुछ इमारतें खराब हो जाएंगी? नहीं मेरे अजीजों, खाने काबा को गिलाफ चढ़ाना उसकी अजमत शान के लिए है। पता ये चला मेरे दीन में जो अजमत वाली चीजें होती है उन्हें गिलाफ चढ़ाया जाता है। इसी तरह हमारी माँ और बहनों को हमने बुर्का इसीलिए चढ़ाया क्या हमारी जिंदगी की शान है और अजमत भी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे घरों की शान है, हमारी माँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियां हमारी शान है। जिस तरह हम अजमत वाली चीजों पर गिलाफ चढ़ाते हैं, अपने घरों की खवातीन पर भी हमने गिलाफ रखा है ये बताने के लिए कि ये आम नहीं है, ये इज्जत वालियां हैं, ये इज्जत वालियां हैं। सुनो मेरे अजीजों, मैं आपको बताऊं अखलाक और किरदार की तालीम जो दूसरे दरसगाहों में हासिल करने की बात करते हैं। रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अजीम अखलाक किसी के पास है?
ان سے اعلیٰ اخلاق کسی کے پاس ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امن کا وہ ماحول قائم کرتے ہوں. یہ جو امن کی بات کرتے پیس کی بات کرتے ہوں. ایک تاریخ کی چھوٹی سی بات میں تمہارے سامنے رکھ دوں. یہ دنیا قتل و غارت کا بازار گرم کرتی ہے. پوری دجالی دین جو ہے حق کو باطل، باطل کو حق بنا کر پیش کرتی ہے. کچھ لوگ آمنا صدقنا کرتے رہتے، نیوز سنا اسی پر چلتے رہے. آج یہاں پر جنگوں کا جو ماحول گرم ہے، صرف اور صرف یہ دادا جو ہمارے زمانے کا ہے امریکہ، اس نے پچھلے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سے جو جنگیں چھیڑی ہیں، سن 1940 کے بعد سے لے کر 2022 248 کے قریب جنگیں ہو چکی ہیں، جس میں سے 201 کو خود وہ امریکہ لیڈ کر رہا ہے. اتنی جنگیں یہ 80 سال کے اندر ہوئی. اور مرے کتنے لوگ پتہ آپ کو؟ مرے کتنے؟ فرسٹ ورلڈ وار میں 3 کروڑ لوگ مرے تھے. سیکنڈ ورلڈ وار میں 5 کروڑ کے قریب لوگ مرے. اور کتنے بے گھر ہوئے، کتنے زخمی ہوئے، اور کتنے بچے اپاہج ہوئے، یہ اس کا حساب ہی الگ ہے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں پر، غزوات پر اور جہاد پر انگلی اٹھانے والے ذرا دامن کو جھانک کر دیکھ لیا ہوتا. حضور کے جہاد پر انگلی اٹھانے والے تمہیں پتہ بھی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں 17 جنگوں میں شرکت فرمائی، 17 غزوات میں. اور ان پورے غزوات میں جو قتل ہوئے تعداد پتہ ہے آپ کو؟ 248. 10 سالوں کے اندر جہاں 248 لوگ قتل ہوئے، اس کے علاوہ جو مقابل میں آئے دشمن، اور یہاں 5 کروڑوں کا خون بہا کر اسلام پر جہاد پر انگلیاں اٹھاتے ہیں. تاریخ نہیں پتا ہے میرے عزیزو. ہے نوجوانوں، تم بتاؤ تو صحیح کہ یہ دنیا کون سا ننگا ناچ ناچتی ہے؟ یا ہوتا یہی ہے کہ خود ہی ساری ناانصافیاں کرو، خود ہی سب چیزوں کا خون کرو اور الزام کسی اور پر رکھو. ایک بات میں اس بات کو کہنے میں ذرا برابر بھی جھجکتا نہیں اور ڈرتا نہیں. الحمدللہ ہمارا تعلق نہ کبھی دہشت گردی سے رہا اور نہ ہے. جو بات کرتے ہیں وہ ڈنکے کی چوٹ پر کرتے ہیں. آتنک کیا چیز ہے، دہشت کیا چیز ہے، ٹیرر کیا چیز ہے، یہ ہمیں پتہ نہیں، یہ ہمیں پتہ نہیں. حقیقت میں بات یہ ہے کہ ہم نے کچھ مجمعوں میں سنا ہے، کچھ درگاہوں کے پاس یا کچھ بھیڑ بھاڑ میں، عرس میں ایسے حالات ہم نے سنے ہیں. میں ہر جگہ کی بات نہیں کرتا کہ کچھ لوگ زور زور سے کہتے رہتے پاکٹ بچا کے چلو، پاکٹ بچا کے چلو. اور ہم نے پتہ کیا کہ وہی لوگ پاکٹ مارتے ہیں جو اعلان کرتے ہیں. اکثر ایسا دیکھا گیا، کیونکہ چور وہی ہے اور وہی بچنے کی بات کرتا ہے. آج دنیا کا نظام بھی یہی ہے کہ سارے قتل و غارت انہی کے ہاتھوں سے، اور پھر دنیا کو کہے امن سے جیو، امن سے جیو، امن سے جیو. ارے ہیومن رائٹس تنظیمیں انہوں نے بنائی، NGOs انہوں نے بنائی، صرف اور صرف دکھاوا ہے. اگر حقیقت میں کہیں امن ہے تو مدینے والے کے پاس خضرا کی چھاؤں میں ہے، جہاں مدینہ طیبہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کو، ننگی تلوار کو، اس کی نوک کو سامنے رکھ کر چلنے سے بھی منع فرمایا. جانتے ہیں کیوں؟ حضور فرماتے میں یہ پسند نہیں کرتا کہ امن کے حالات میں جنگ کی نوک کسی انسان کی طرف ہو. حضور یہ بھی پسند نہیں کرتے. جنگیں تو بہت دور کی بات. اور حضور کی حدیث ہے لا تتمنوا لقاء عدوکم، کبھی تم جنگ کی تمنا مت کرنا، دشمن سے مت بھیڑ ہونے کی تمنا مت کرنا. حضور کے یہ فرامین عالی شان ہے. ہاں اگر جہاد ہوئے تو ان حالات میں کہ پھر اگر دنیا دھوکنے لگتی ہے تو بتانا بھی ضروری ہوتا ہے کہ ہم اپائج نہیں ہیں. ہم اپائج نہیں ہیں. اللہ نے ہمیں بھی بازو اپائجی اور طاقت عطا کی ہے. اے نوجوانوں، آج میں تمہیں یہی تعلیم دینے آیا ہوں. تم کسی سے جنگ کی تمنا مت کرنا، کبھی فساد کی راستے پر نہ جانا، کبھی قتل و غارت کا سوچنا بھی مت. کبھی اسلام نے یہ باتیں نہیں سکھائی. نہ کسی مندر پر پتھر مارنا، نہ کسی عبادت گاہ کو توڑنا، حتیٰ
देखा कि मेरे रसूल रहमत ने अजनबी मोहल्ले में जाकर किसी दरख्त के पत्ते को तोड़ने से भी मना फरमाया है। तुम्हें मैं ये तालीमात देता हूँ, अमन कायम जरूर रखना, लेकिन इतनी बात ये भी याद रखना, अगर कोई जालिम कुत्ता बहुत ही ज्यादा सर पर भौंकने लग जाए तो फिर ये ऐलान करना जो हमारे असलाफ ने किया था, तल न सकते थे जंग में अगर अड़ जाते थे, मैदान से उखड़ जाते थे, हक से सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। अरे तेज क्या चीज है, हम तोप से भी लड़ जाते मेरे अजीजों, ये बात इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि सहाबा ने हमें ये भी सिखाया है, अमन कायम करने के लिए ही इस्लाम आया है, अमन कायम करने के लिए इस्लाम आया है। लेकिन जानते हो इन अमन के मसीहों के साथ जो हरकतें आज की जाती है, उन अमन के अलमबरदारों को ये डंके की चोट पर कहना होगा। बाज लोगों को ये लगता है कि ये जिहादी ग्रुप है, जिहादी प्रोपेगेंडा है, उन्हें क्या पता। मैं इस मिंबर पर बैठकर इस लफ्ज को इस्तेमाल करने में ये भी बता दूं, किसी को डर लगता है, खौफ लगता है तो वो अपने डर में मरे, इसलिए कि जिहाद कोई नापाक लफ्ज नहीं है, मेरे मुस्तफा करीम की सीरत का लफ्ज है। तुमने अगर गलत समझा है तो ये तुम्हारे दिमाग का खोट है, ये तुम्हारे दिमाग का खोट है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी तालीम फरमाई, इन्ना अफ़ज़ल जिहाद कलिमतु हक़्क़िन इंद सुल्तानिल जाहिर, सबसे अफजल जिहाद क्या है? हुजूर फरमाते हैं जालिम बादशाह के सामने हक बात का ऐलान करना सबसे अफजल जिहाद। जरूरी नहीं कि तलवार उठाओ, चाकू उठाओ, बंदूक उठाओ, उसको जंग कहते हो, नहीं मेरे अजीजों, हक बात का ऐलान करना ये सबसे अफजल जिहाद है। और मैं आज तुम्हें भी दावत देता हूँ, मिंबर पर बैठे उलमा से भी कहता हूँ, मेरे दीन में सिर्फ और सिर्फ कोई चीज है तो हक्कानियत है, हक्कानियत है। और ये हक्कानियत छुपाने के लिए नहीं दी गई, बताने के लिए दी गई है। और पूरी दुनिया अगर चिढ़ती है तो चिढ़े, लेकिन हम ये बता करके रहेंगे, पूरी कायनात में अगर सबसे आला अखलाक वाला कोई था तो आमिना का लाल था। ये बताने में कौन सा आर है, कौन सा आर है? मैं तुम्हें प्रैक्टिकल जिंदगी में बता दूं, मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ, बस समेट रहा हूँ थोड़ी सी बात प्रैक्टिकल, जो रसूल पाक के अखलाक व किरदार आज अगर तुम अमल पैरा हो गए, तुम अंदाजा भी नहीं कर सकते कि किस कदर इनकलाब आएगा, कैसा इनकलाब आएगा। बहुत सारी तंजीमें और टीमें तुमने बनाई होंगी, अखलाक रसूल की एक तंजीम तो बनाकर देख लो। मखदूम मियां साहब ने अभी मुझे आने से पहले जो सोशल वर्क की एक फेमिनिस्ट बताई, दिल बाग हो गया। ये वो काम करने जा रहे हैं जो मदीने के ताजदार ने अपने माशरे में कायम किया। इन अखलाक और किरदार से एक दुनिया जीती जा सकती है। चंद सालों पहले की बात मैं बता रहा हूँ, चंद सालों पहले की बात कि रबीउल अव्वल शरीफ में 12वीं का दिन था। सुबह सुबह मैं ट्रेन से उतर रहा था, एक नौजवान ने मुझसे पूछा कि हज़रत आज 12वीं का दिन है, हुजूर की मिलाद का है, खुशियां तो सब मनाते, कोई एक ऐसा काम मुझे बता दे जिससे रसूल पाक की रूह खुश हो जाए। मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा अमल करो। आज हुजूर का पैदाइशी दिन है, कुमकुमे लगाए, झंडे लगाए, लाइटें लगाए, मिठाइयां तकसीम करें, सब खुशी के इजहार के तरीके, लेकिन कुछ तरीके और भी हैं जिसको तुमने भुला ही रखा है। उस नौजवान ने पूछा, मेरे जहन में कोई बात थी नहीं, स्टेशन पर थे, रेलवे स्टेशन पर। मैंने कहा बेटा अगर यही कुछ करना है तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक में एक आला अखलाक ये था कि जब भी हुजूर किसी बूढ़े या कमजोर को बोझ उठाया हुआ देखते, खुद चाहते उसका बोझ अपने कंधों पर उठाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर की आदत पूरे मक्का में मशहूर है, रिवायतों में लिखा हुआ है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो बोझों को उठाते थे, किसके? कमजोरों के, बूढ़ों के। कहा यहाँ अगर तुझे मैसर आता है तो जा हुजूर की सुन्नत पे अमल कर ले। वो दौड़ा गया, एक खातून बूढ़ी औरत थी, 2 बड़े बड़े शॉपर लेकर उतर रही थी। गया, कहा कि अम्मा जी ये मुझे दे दे, मैं लेकर चलता हूँ। वो घबराई, कहा क्यों भाई, मेरा सामान तू क्यों उठाएगा, एक अजनबी को भला कौन सामान देगा? तो उसने कहा अम्मा जी खिदमत करने आया हूँ। उस औरत ने कहा ना तेरे पास कुली का ड्रेस है, ना बैच है, कुछ नहीं है,
मेरी थैलियां उठाए लेकर के भाग जाए, मैं क्या करूं? अकेली खातून थी, नौजवान ने उसको बात समझा दी। अम्मा जी बात इतनी है, आज हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जन्मदिन है। सुभान अल्लाह, सुभान मैं उनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और हमारे प्रॉफेट की यह आदत थी कि जब भी कोई बूढ़ा या बूढ़ी बोझ उठाते तो वो उन्हें उठाने नहीं देते, अपने कंधों पर उठा लेते। सुभान अल्लाह। प्रॉफेट की इस अमल अदा पर अमल करके उनकी रूह को, उनकी आत्मा को खुशी दे दूं। सुभान अल्लाह। खातून की बात समझ में आ गई कि नौजवान चोर उछक्का तो नहीं है, काम करना चाहता है। दोनों थैलियां दे दी, पकड़ा दिया। वो नौजवान वो ले करके काफी दूर तक जाना था, उसे गाड़ी में बिठाया और भेज दिया। नंबर उन्होंने शेयर कर लिए थे एक दूसरे के। ये बात आई और गई, हुजूर की एक सुन्नत पर अमल करना, हुजूर के एक अखलाक पर अमल करना। मेरे अजीजों, कई दिनों के बाद, 6 महीने के बाद उस नौजवान ने मुझे ये इत्तला दी। कहते 12वीं शरीफ को मैंने ऐसे कर दिया, आपने कहा था हुजूर की सुन्नत और हुजूर को खुश करने के लिए, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि इसका असर इतना हो। 6 महीने के बाद वो खातून मुझे मैसेज करती है और बात करती है और कहती है कैसा है बेटा, तुझे याद है हम मिले थे फला फला? हाँ याद है। वो खातून कहती है 6 महीने गुजर गए, अब तक मैं तेरे प्रॉफिट की सीरत ही पढ़ रही हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तक मैं मोहम्मद साहब की तारीख ही पढ़ रही हूँ कि जिनका मानने वाला एक नौजवान मेरे बोझ को उठाता है तो ये गुलाम का हाल है, तो उनके आका कैसे है? मेरे अजीजों, अल्लाह करे कि ईमान की दौलत मिले, हिदायत मिले। लेकिन मैंने ये महसूस किया कि तुम अगर अखलाक के रसूल में ढल जाते हो, इज्जत तुम्हारी अपनी जगह पर, लेकिन तुम सबब बन जाते हो औरों के दीन इस्लाम में आने के, हुजूर की गुलामी की तरफ लाने का तुम जरिया बन सकते हो। आज इसी बात की जरूरत है। उठो, वो करना हश्र न होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया। मुझे ये बात भी अर्ज करनी है उन नौजवानों से, ए नौजवानों, जिसको तुम फैशन समझ रहे हो, जिसको तुम मॉडर्न कल्चर समझ रहे हो, कि मैं बिल्कुल ऐसा चिकना बन जाऊं कि लोग मुझे देखते रह जाएं। तुमने दाढ़ियों में भी क्रिकेट ग्राउंड बनाए और सर में भी कई तरह के डिजाइन बनाए, कानों में बालियां पहन ली, हाथों में चूड़ियां पहन ली, और सब कुछ तुम्हें फटी जीन्स और इधर उधर से सतर निकाल करके फिरने में मजा आने लगा, और अपने आप को ये समझते हैं कि मैं पॉश आदमी हूं। तुम्हें अंदाजा भी नहीं। ये दुनिया जिसको पॉश कह रही है, ये वही दज्जाल वाली दुनिया है, जिसके बारे में मेरे आका ने फरमाया था कि दज्जाल आएगा, एक हाथ में जन्नत दिखाएगा, एक हाथ में दोज़ख दिखाएगा। हकीकत में उसकी जन्नत दोज़ख है और उसकी दोज़ख जन्नत है। दोज़ख उसकी जन्नत है। ये वही दुनिया है जो तुम्हें पॉश और हाई लेवल का एक इंसान बनाकर दिखाने की कोशिश करती है। दर हकीकत मैं कहता हूं कि ये तुम्हें जानवर बनाना चाहते हैं। और नौजवान को पता भी नहीं वो कब मुखन्नस बन जाता है, न मर्द लगता है न औरत लगता है, मगर फिर भी उसे लगता है फैशन है, क्यों बना रहा है? फैशन है। दुनिया ने तुम्हें कहां छोड़ रखा। तुम्हारे अखलाक किरदार तो गए ही थे, लेकिन तुम्हारी आइडेंटिटी भी खत्म। पता नहीं चल रहा कि ये कौन है। मर्दों को बालियां, चूड़ियां और सारी चीजें, नथनियां सब पहना दिया और तुम शौक से पहनते रह गए। तुम्हें पता है मेरे अजीजों, जिस दुनिया के पीछे तुम चल रहे हो, तुम्हें यह भी मालूम है कि मेरी कब्र में जाने के बाद न ये कोई हॉलीवुड वाला आएगा न बॉलीवुड वाला आएगा। जिसके अखलाक और किरदार का मैं फैन हूं, इनमें से कोई नहीं आने वाला। मेरी कब्र की तख्तियां बंद होने के बाद अगर कोई आता है तो ताजदार मदीना की सुभान अल्लाह। वही एक जात है जो कब्र में नूर और रोशनी लेकर आ सकती है। जब तुम्हें पता है मेरे मौत के बाद न मेरी माँ मेरी कब्र में आएगी, न मेरा बाप, न मेरा दोस्त, न मेरा भाई, जिसके लिए मैं सबसे लड़ लिया करता था, वो भी मुंह पर मट्टी डालकर चला जाएगा कब्र के बाद। लेकिन तुम्हें ये पता है कि कब्र की तख्तियां बंद करने के बाद मुनकर नकीर से आने से पहले रसूल रहमत तशरीफ लाते हैं, मुस्तफा करीम तशरीफ लाते हैं। ऐ नौजवान, जब तुझे पता है एक न एक दिन उनका सामना करना ही होगा,
उनके सामने मुझे खड़ा होना ही है, कब्र में हो या हश्र में हो। तो सुन ले बरेली के इमाम ने क्या कहा था, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मांगेंगे कयामत में अगर मांग गए, कल न मानेंगे कयामत में अगर मांग गया।